گورنر کی بیٹی کو اغوا کاروں سے بچانے کا مشن. ہالی ووڈ کی نئی فلم راک کا ٹریلر جاری کر دیا گیا. میگن فاکس کی خوبصورت اداکاری سے سجی فلم 28 اگست کو ریلیز ہوگی. خبر سب سے پہلے. میں ہوں ثنا ارشد. کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلواڑ، کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ، علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک، کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار، میں آپ کو رکھوں گی باخبر. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. کامیاب لوگ کامیاب کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہار نہیں مانتے، نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہیں. اسی لیے فیملی ٹوڈے میں ہم آپ کو ملوائیں گے پاکستان کی ایسی ہی نامور شخصیات سے. دیکھیے پروگرام فیملی ٹوڈے سمیرہ مرزا کے ساتھ صرف ٹی وی ٹوڈے پر. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے. میں ہوں سمیرہ مرزا. وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ میں رد و بدل کرتے ہوئے معاون خصوصی شہزاد اکبر کو مشیر داخلہ کا قلمدان دے دیا، جبکہ ملک امین اسلم کو مشیر موسمیاتی تبدیلی بنا دیا گیا ہے اور ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا. وزیر اعظم عمران خان نے شہزاد اکبر اور ملک امین اسلم سے رابطہ کر کے انہیں تبدیلیوں سے متعلق اعتماد میں لے لیا اور نئی ذمہ داریوں سے متعلق آگاہ کر کے تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے. تو تبدیلی حکومت میں تبدیلی آئی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ میں رد و بدل کرتے ہوئے معاون خصوصی شہزاد اکبر کو مشیر داخلہ کا قلمدان دے دیا، جبکہ ملک امین اسلم کو مشیر موسمیاتی تبدیلی بنا دیا گیا اور ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا. وزیر اعظم عمران خان نے شہزاد اکبر اور ملک امین اسلم سے رابطہ کر کے انہیں تبدیلیوں سے متعلق اعتماد میں لیا اور نئی ذمہ داریوں سے متعلق آگاہ کر کے تیاری شروع کر دی گئی. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری کا نیب کو بند کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں نیب غیر آئینی اور غیر قانونی ادارہ ہے. چیئرمین نیب استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. نیب کو صرف اپوزیشن کے لیے ہی استعمال کیا جا رہا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے پنجاب کی ٹیم کو نااہل اور نالائق قرار دے دیا. کہا شہباز شریف کی صحت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. لاہور میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے پنجاب کی ٹیم کو نااہل اور نالائق قرار دے دیا. ہم تو کہتے تھے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ نیب صرف مخالفین کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ بات کہہ رہی ہے نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا. نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا، اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا. پی آر ٹی میں جو کرپشن علی زیدی اور اس کا فرنٹ مین عمران خان کے لیے کرتا ہے، معلوم جبا بھی کرپشن کا جواب دینے کو تیار نہیں. بلین ٹریز پہ نہ پیسہ کا حساب دینے کو تیار، نہ درخت کا حساب دینے کو تیار ہے. آٹا میں کرپشن، چینی میں کرپشن، تیل میں کرپشن، پیٹرول پرائسز میں کرپشن. پنجاب کے عوام یہ ان آرگینک سلیکٹڈ جو پنجاب حکومت ہے، جو فیڈرل حکومت ہے، انہوں نے ہر پاکستانی کا
जिंदगी और सेहत को खतरा में डाल दिया है। जिन्होंने इनको लेकर आए थे, अगर उनको साफ शफाफ पाकिस्तान बनाना था, करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना था, तो क्या आज पाकिस्तान करप्शन फ्री है? पंजाब तो जादू और करप्शन पे चलता है। लेकिन अगर वो खुद मान रहे हैं कि पंजाब में करप्शन हो रहा है, तो इस करप्शन के पीछे कौन? -1 की बात है तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कभी भी इसका ना हमायत करती है, ना करेगी। हमने कभी इस इशू को नहीं छेड़ा। ये खुद वजीर आजम ने कहा नेशनल असेंबली फ्लोर पे कि -1 की बात जो हुआ वो वजीर आजम के मुंह से हुआ, तो उसको पता होगा -1 तो ऑपोजिशन की तरफ सिर्फ नहीं होता है, अगर उनका एलाइज उनसे हट जाता है तो माइनस वो खुद हो गया। सेनेटर रजा रबानी ने भी एहतसाब का नया कानून लाने का मुतालिबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद पार्लियामान ने किरदार अदा न किया तो तारीख के मुजरिम होंगे। एक नए फेडरल अकाउंटेबिलिटी कानून की जरूरत है। सबके लिए यकसा कानून बनाया जाए। एक कानून और एक तरीकाकार सबके लिए होना चाहिए। सेनेटर रजा रबानी का कहना था कि दीगर अदालतों को जमानत के केसेस में इस फैसले पर अमल करना होगा। सेनेट ने सस्ते इंसाफ के लिए सिफारिशात दी, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। रजा रबानी ने तजवीज़ दी कि पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखते हुए नए एहतसाब कानून का तयन करना होगा। एक नए फेडरल अकाउंटेबिलिटी अकाउंट की जरूरत है। सबके लिए यकसा कानून बनाया जाए। एक कानून और एक तरीकाकार सबके लिए होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा, कोई मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। दोनों ऐवान की या पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। कमेटी की तश्कील करके टाइम फ्रेम के अंदर नया एहतसाब का कानून लाना पड़ेगा। हुकूमती वज़रा भी मैदान में आ गए। मुराद सईद कहते हैं, चोरों से निजात कौम का मुकद्दर है और इमरान खान उसका वसीला है। इमरान खान ने रायबंद और सिंध के चोरों से बैक वक्त कौम की जान छुड़ाई। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज भी कहते हैं, बिलावल की नैब बंद करो की पुकार का मतलब है उन्हें अवाम को लूटने से कोई ना पूछे और ना ही कोई रोके। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए विफाकी वज़ीर मवासिलात मुराद सईद ने कहा कि चोरों से निजात कौम का मुकद्दर है, इमरान खान वसीला है। विफाकी वजीर मुराद सईद ने मजीद कहा कि इमरान खान ने रायबंद और सिंध के चोरों से बैक वक्त कौम की जान छुड़ाई। पर्ची चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। उन्होंने कहा कि फरजंदे जरदारी ने वाज़ेह कर दिया कि एहतसाब से बचने के लिए नारा लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। नैब या कानून पर नहीं, उन्हें चोरी और डाका जनी के बारे में सवालात पर एतराज है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि शहबाज शरीफ और बिलावल एक दूसरे पर एतमाद करने से गुरेजा हैं। पहले ही बता दिया था कि ये एक नहीं हो सकते। पेशगोइयां सच साबित होने पर ऑपोजिशन मुझे सियासी वली तस्लीम कर ले। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा, हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने और पानी से पकौड़े तलने में जमीन आसमान का फर्क है। तहरीक ऐलान से पहले ही अपोजिशन की सफ़ों में इंतशार हसरत है मुझे उन गुंजों पर जो बिन खिले मुरझा गए। मुस्ताक है। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि पंजाब काबीना के वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद के बाद बुज़दार हुकूमत मजबूत तर है। उस्मान खान बुज़दार पर एतमाद की वजह उनकी इंतज़ामी सलाहियतें और बेहतरीन कारकर्दगी है। एक अहम फैसला सामने आया है। पंजाब हुकूमत ने ईद के बाद रेस्टोरेंट्स और सितंबर के पहले हफ्ते शादी हॉल्स SOP के साथ खोलने का फैसला कर लिया है। वज़ीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल का कहना था, ईद के बाद रेस्टोरेंट्स खोले जा रहे हैं। ईद तक SOPs बनाकर विफाकी हुकूमत को भिजवाए जाएंगे। उन्होंने कहा, कोरोना केसेस जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे सेक्टर्स खोले जाएंगे। शादी हॉल्स मालिकान से मीटिंग में 1 सितंबर को खोलने पर इत्तफाक हुआ था। शादी हॉल सितंबर के पहले हफ्ते में SOPs के साथ खोलने की इजाजत देंगे। पंजाब हुकूमत तन्हा नहीं, विफाक और दीगर सूबों को साथ मिलाकर ही फैसले करती है। हुकूमत ने कुलभूषण यादव की सजा के खिलाफ अपील के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। हुकूमत ने इस्तदा की है कि अपील दायर करने के लिए अदालत आलिया भारतीय जासूस के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे। ये रिपोर्ट इसी बारे में।
हुकूमत ने कुलभूषण यादव की सजा के खिलाफ अपील के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। हुकूमत ने इस्तदा की है कि अपील दायर करने के लिए अदालत आलिया भारतीय जासूस के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे। मौक़िफ़ में कहा गया कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने 20 मई को ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें कुलभूषण यादव की सजा के खिलाफ अपील के लिए 3 ऑप्शन रखे गए। कुलभूषण की जानिब से अपील से इनकार और भारत की जानिब से गुरेज के बाद कानूनी नुमाइंदे के जरिए अपील दायर करने का ऑप्शन बचा। दरखास्त में कहा गया कि कुलभूषण यादव भारत की मामनत के बगैर पाकिस्तान में वकील मुकर्रर नहीं कर सकता। अदालत कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे ताकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद हो सके। दरखास्त में वफाक को बजरिया सेक्रेटरी दिफा और जज एडवोकेट जनरल के जरिए GHQ को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस ले लिया। अदालत ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, हमें आज़ादी इज़हार राय से कोई मसला नहीं, अवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर अवाम को बात करने का हक है, निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। क्या FIA और PTA ने देखा यूट्यूब पर क्या हो रहा है? जस्टिस काजी अमीन ने कहा, हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे खानदान को बख्शा नहीं जाता, कोई यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है, जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। कल हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया। आर्मी, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। PTA हुकाम ने अदालत को बताया कि इंफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्टिस मशीर आलम ने रिमार्क्स दिए, कई ममालिक में यूट्यूब बंद है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, ऐसे जुर्म के मुर्तकिब कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। कई ममालिक में सोशल मीडिया को मुकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत गैस के शोबे से मुतालिक इजलास। इमरान खान कहते हैं, गैस के शोबे में घरेलू और सनती शोबे की ज़रूरियात बढ़ रही हैं। गैस शोबे से मुतालिक हक़ाइक़ मुश्तरका मफादात काउंसिल के सामने रखे जाएँ। गैस शोबे के नामवर माहिरीन से मुशावरत का अमल शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गैस के शोबे से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में गैस की तलब व रसद, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ने मुल्की सतह पर गैस पैदावार, तलब व रसद पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि गैस के शोबे में घरेलू और सनती शोबे की ज़रूरियात बढ़ रही हैं। मुकामी तौर पर गैस के महदूद ज़खायर फौरी जामे मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गैस मामलात का ताल्लुक किसी एक सूबे से नहीं बल्कि पूरे मुल्क से है। गैस मामलात पर बाहमी मुशावरत से मुस्तक़बिल के लाहे अमल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मज़ीद कहना था कि गैस शोबे से मुतालिक हक़ाइक़ मुश्तरका मफादात काउंसिल के सामने रखे जाएँ। गैस शोबे के नामवर माहिरीन से मुशावरत का अमल शुरू कर दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बांग्लादेशी हममनसब शेख हसीना वाजिद को टेलीफोन किया और बांग्लादेश में कोरोना के बायस कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। टेलीफोनिक राबते में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना की रोकथाम के लिए बांग्लादेशी क़यादत की तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना के चैलेंज से निमटने के लिए किए गए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेशी हममनसब को इंसानी जानें बचाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दाम से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज़ों से रिलीफ के लिए भी आलमी मुहिम से आगाह किया। दो तरफ़ा राबते में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बांग्लादेश में हालिया सैलाब की वजह से होने वाले माली और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कुदरती आफात से मुतासर अफराद की जल्द ही सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान बाहमी एतमाद, एहतराम और खुद मुख्तारी मसावात की बुनियाद पर बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को गहरा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेशी हम मनसब को पाकिस्तान आने की दावत दी। ईद से कबल शहर भर में वार्डन्स बेजा चालान करने लगे हैं। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। देखिए नुमाइंदा TV टुडे शहराज निसार की रिपोर्ट। दिन दिहाड़ पर और ख़ास तौर पर ईद के मौका पर शहरियों में ये तासुर पाया जाता है कि वार्डन्स की तरफ से जो है वो बेजा चालान किए जाते हैं। इसमें क्या हकीकत है, इस हवाले से हम आपको आज दिखाएंगे।
किसी भी दिन दिहाड़ और खसूसन ईद के मौका पर वार्डन्स की तरफ से बेजा चलानों की शिकायत पर हकीकत जानने के लिए टीवी टुडे ने एक सर्वे किया। इसमें शहरियों, वार्डन्स और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर से भी बात की गई। शहरियों ने कहा कि मामूली और अचानक हो जाने वाली गलती पर वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए। कॉल आई थी घर से इमरजेंसी के लिए, इसलिए वो सुन रहा था तो इसलिए 1 सेकंड के लिए सिर्फ उतारा ही है। अब वैसे सुन नहीं था सकता, उन्होंने काम था ज़रा तो इसलिए मैंने उतार के रखा ही। अभी पहनने लगा था तो उन्होंने रोक लिया सर। जा रहा था वहाँ से, यानी कि नज़दीक पड़ेगा, मैंने जाना है कोट अब्दुल मालिक, वहाँ ये नज़दीक था, मुझे बस जल्दी में आ गया इसी वजह से। और मैं लोकेशन देख रहा था, इन्होंने देख लिया कि फ़ोन पे लगा हूँ। वार्डन्स का कहना है कि चालान सिर्फ उसी का किया जाता है जो कानून की खिलाफ वर्जी करता है। हम ईद के मौका पर भी ड्यूटी करते हैं ताकि शहरियों के लिए ट्रैफिक मसाइल पैदा न हो। जब भी कोई वायलेशन होती है उस पर चालान किए जाते हैं। इससे ईद का या किसी और इवेंट का कोई ताल्लुक नहीं होता। हमेशा जब भी चालान किए जाते हैं वायलेशन पे किए जाते हैं। नहीं, ईद के मौका के ऊपर तकरीबन रिलैक्सेशन ही होती है। जो ज़्यादा करते हैं ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, रैश ड्राइविंग कर दी या वो ट्रिपलिंग कर दी, वो भी शादो नादर, ज़्यादा नहीं। इस हवाले से चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद ने बात करते हुए कहा कि वार्डन्स की न सिर्फ सड़कों पर ड्यूटियां लगाई गई हैं बल्कि मवेशी मंडियों के लिए भी उनकी ड्यूटी लगाई गई है ताकि शहरी जो है वो ट्रैफिक मसाइल से दो चार न हो। इस दफ़ा जैसा आपकी नॉलेज में है कि 12 मवेशी मंडियाँ मुख्तस की गई हैं, तो उसके लिए हमने इस दफ़ा पिछले साल की निस्बत हमने ऑलमोस्ट डबल डिप्लॉयमेंट की है और हमारे कोई 40 STWs हैं और 326 के करीब हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो कि ड्यूटीज़ पे मामूर हैं। इस हवाले से बात करते हुए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने यह भी कहा कि किसी भी वार्डन को ये नहीं कहा गया कि ईद के मौका पर जो है वो शहरियों के बेजा चालान किए जाएं, बल्कि उनको ये कहा गया है कि अगर कोई मामूली गलती करता भी है तो उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए। ईद के मौका पर भी सड़कों पर मौजूद वार्डन्स का कहना है कि उनको कोई भी ऐसा हुक्मनामा जारी नहीं किया गया कि बेजा चालान किए जाएं। चालान सिर्फ उसी का होता है जो कानून की खिलाफ वर्जी करता है। कैमरामैन अबू बकर के साथ शिराज निसार, टीवी टुडे, लाहौर। गैर मुल्की मीडिया का वफ्द आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे के लिए इस्लामाबाद से रवाना हो गया है। UN फौजी मुबस्सिर मिशन LOC के पार काम नहीं कर सकता, पाकिस्तान ने आज़ादाना माहौल दिया। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अपील की धज्जियां उड़ा दी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने कोरोना वबा के पेश नज़र आलमी सतह पर जंग बंदी की अपील की, मगर उसके बरक्स भारतीय फोर्सेज शहरी आबादी पर इश्तियाल अंगेजियां जारी रखे हुए हैं। भारत रवां साल लाइन ऑफ कंट्रोल पर 1744 खिलाफ वर्जियां कर चुका है। भारतीय फोर्सेस की LOC पर पे दर पे इश्तियाल अंगेजियों में 14 मासूम शहरी शहीद जबकि 135 जख्मी हुए। शोहदा में 5 बच्चे, 5 खातीन, 4 मर्द, जबकि जख्मियों में 36 बच्चे और 44 खवातीन शामिल हैं। अब आपको बताएं, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत की हिंदुत्वा सोच और जारहाना पॉलिसीज के बायस पूरे खित्ते के अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हैं। भारत अफगानिस्तान में भी क़याम अमन की काविशों को सबोताज करना चाहता है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी के ज़ेर सदारत वजारत खारजा में खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से आला सतह इजलास हुआ, जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत और खित्ते में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और अपनी दाखिली कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर आम शहरियों को निशाना बना रहा है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज कुशी और इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों को अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर आलमी और इलाकाई फोरम पर उठाते हुए उसका असल चेहरा दुनिया के सामने ला रहा है। मुशीर खजाना हाफिज शेख इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास, नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए 33 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी। पाकिस्तान आर्मी के लिए 1.5 लाख मैट्रिक टन गंदम फराहमी की भी मंजूरी। ज़राई शोबे के लिए खाद पर 15.7 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मुशीर खजाना हाफिज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुतअद्दिद मंसूबों के लिए रकम की मंजूरी दी गई। इजलास के दौरान नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए 33 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी भी दी गई। इस साल 4.77 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वजारत खजाना 3 से 10 मरले के छोटे घरों की तामीर पर सब्सिडी देगी। पाकिस्तान आर्मी के लिए 1.5 लाख मैट्रिक टन गंदम की फराहमी की मंजूरी दी गई है। ज़राई शोबे के लिए खाद पर 15.7 अरब रुपए सब्सिडी की फराहमी भी मंजूर हो गई है।
ज़राए के मुताबिक नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर और सरकारी महकमों के लिए नए सिस्टम ECC साल 2020 के लिए तंबाकू की कम अज़ कम कीमत की मंजूरी दी गई है। कीमत की मंजूरी प्राइस एंड ग्रेड रिवीजन कमेटी की सिफारिश की रोशनी में दी गई है। NFC की तश्कील पर वफाकी हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। वफाकी हुकूमत ने मुशीर खजाना हफीज शेख को NFC से निकाल दिया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के लिए खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने NFC की तश्कील का नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया, जिसके बाद कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ नून लीग के इंजीनियर खुरम दस्तगीर की दरख्वास्त निपटा दी गई। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने यह बताया कि जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया वो हुकूमत ने वापस ले लिया। हुकूमत ने अब नया नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक मुशीर खजाना हफीज शेख को कमीशन में शामिल नहीं किया गया। नून लीग के वकील बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने यह कहा कि हमारा एतराज था कि हमसे मुशावरत के बगैर मालियाती कमीशन तश्कील दिया गया। हमारी ये कामयाबी है कि हुकूमत को हमने आइन के तहत काम करने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार से वज़ीर आज़म ऑफिस में इमरान खान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में सूबे से मुतालिक उमूर, सियासी सूरत हाल और गंदम आटे की दस्तयाबी की तफसीली जायजा लिया गया है। वन-ऑन-वन मुलाकात में सूबे के इंतजामी उमूर में बेहतरी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी बातचीत हुई और इस बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को अहकामात भी जारी किए। ख़ास तौर पर पंजाब में आटे और गंदम की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के हवाले से अहकामात भी जारी हुए और किसी तौर पर भी सूबे में गंदम और आटे का बहरान पैदा नहीं होना चाहिए और ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि वाफिर गंदम मौजूद है। जो भी गंदम ज़ख़ीरा करें उन्हें किसी सूरत न छोड़ा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने माफियाज पर हाथ डाला है और अवाम की बेहतरी के लिए वो इक़दाम उठाते रहेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 38 मरीज इंतकाल कर गए हैं। अमवात की तादाद 5677 हो गई। मजीद 1332 अफराद में वायरस की तशखीस भी हुई है, जिससे मरीजों की तादाद 2,67,427 हो गई। 1436 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,11,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 38 मरीजों की जिंदगियां निगल ली। सिंध में 2041, पंजाब में 2095, खैबर पख्तूनख्वा में 1053, बलोचिस्तान में 135, गिलगित बल्तिस्तान में 45, आज़ाद कश्मीर में 47 और इस्लामाबाद में 161 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 1013 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 90,191, सिंध में 1,13,553, खैबर पख्तूनख्वा में 32,243, बलोचिस्तान में 11,441, गिलगित बल्तिस्तान में 1,868, इस्लामाबाद 14,625 और आज़ाद कश्मीर में 1,922 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,51,00,000 तक जा पहुंची। हलाकतों की तादाद 6,20,000 हो गई। 91,15,000 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मूजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 6,20,000 जिंदगियां निगल चुका है। अमेरिका में 1,44,953, ब्राजील में 81,597, रूस में 12,580, भारत में 28,770, टर्की में 5,526, ईरान में 14,634, अफगानिस्तान में 1,186 और सऊदी अरब में 2,557 अमवात अब तक हो चुकी हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशामें, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। हमारी नजर है हर बदलते मंजर पर, सियासी, समाजी और माशी हालात पर, गिरदो पेश के वाकयात पर, खबर और उससे जुड़े हकाइक पर, इक़्तिदार की सियासत और आवाम के हालात,
रहे हैं और आवाम क्या चाहते हैं। सब पहुंचाएंगे आप तक, ख्वाहिश को खबर बनाए बगैर। देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर जुर्म के पीछे छुपी कहानी, जुर्म कब, कहां और कैसे हुआ, हमारी नजर होगी हर वारदात पर। मुजरिम की चालाकी और सफाकी पर। जुर्म कैसे निशान छोड़ता है, पर्दा उठाएंगे हर रात से। देखिए प्रोग्राम तफ्तीश सिर्फ टीवी टुडे पर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। आपको बताएं, सिंध ने विफाक से खुशहाल खान खटक, बोलान मेल और मोहिंजो दड़ो ट्रेन बहाल करने का मुतालिबा कर दिया है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ओवैस शाह कहते हैं, शेख रशीद ने 2 साल में ट्रेनों का बुरा हाल कर दिया। विफाक ने अवाम को ट्रेन की सस्ती सहूलत से भी महरूम कर दिया है। शेख रशीद ने जानबूझकर लाड़काना की 3 ट्रेनें बंद कर दी। ट्रेनें बंद होने का वजीर आजम नोटिस लें और फौरी बहाली का हुक्म भी जारी करें। इमरान खान ने शेख रशीद को रेलवे का दिवालिया करने पर मिशन पर लगा दिया है। बहावलनगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई। एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवान और एसएसपी पेट्रोलिंग मोहम्मद शरीफ चौधरी की हिदायत पर जिला भर में मनशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन कामयाबी के साथ जारी है। डीएसपी मजहर अहमद वट्टू की सरबराही में पेट्रोलिंग पुलिस ने दौरान नाकाबंदी के 185 बोतल विलायती शराब बरामद कर ली और मुलजिम गिरफ्तार, जिसके खिलाफ मनशियात एक्ट के तहत थाना सदर बहावलनगर में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। माजी की शानदार सवारी तांगा तरक्की करते जमाने ने नकूश भी मिटा दिए। नई नस्ल तांगे की सवारी से लाइल बसों, वैगनों और ऑटो रिक्शे ने कम खर्च तांगा को खत्म ही कर दिया है। पत्तोकी से देखते हैं शाहिद जावेद चौधरी की ये रिपोर्ट। वक्त का पहिया इस तेजी से घुमा कि तांगे की टक टक करती आवाज़ें शोर शराबे में कहीं खो गईं। बाहर से आए मेहमान हों या फिर अंदरूने शहर के लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तांगे की सवारी पर सफ़र करना पसंद करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बसों, वैगनों और रिक्शों ने तांगे की जगह संभाल ली। ये तांगे बाज़ारों और रेलवे स्टेशनों पर भी मिला करते थे, जहां तांगे मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम करते थे। तांगे की सवारी को ना सीएनजी की कोई फ़िक्र थी और ना ही पेट्रोल का कोई मसला था। तांगा एक हवादार सवारी हुआ करती थी, जहां शहरी पुरसकून और इंतहाई कम किराया से भी तांगे पर खुश होकर सफ़र करते थे। शाहिद जावेद चौधरी, टीवी टुडे। पंजाब पुलिस के एहलकारों को भी टिकटॉक का जुनून सवार हो गया। एक तरफ बढ़ते जराइम और दूसरी तरफ टिकटॉक का जुनून। हाथ में सिगरेट, मुंह से धुआं और सरकारी असलहे की नुमाइश। पंजाब के शेर जवानों की टिकटॉक पर भरपूर कारकर्दगी। बलवाल के एएसपी और कांस्टेबल की भारतीय गनों पर अदाकारी ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। सरगोदा पुलिस के शेर जवान भी टिकटॉक के शौकीन निकले। कानून के रखवाले ही कानून को हाथ में लेने लगे। सोशल मीडिया पर जदीद असलहे की नुमाइश पाबंदी के बावजूद शेर जवानों का इंडियन गानों पर एक्टिंग की वीडियोस, ऑपरेटर एएसपी बलवाल और कांस्टेबल की टिकटॉक वीडियोस वायरल। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो,
जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। वर्दी में मलबूस एहलकारों ने सोशल मीडिया ऐप के जरिए अदाकारी के जलवे दिखाए, जराइम पर काबू पाने में नाकाम। सरगोदा पुलिस के एहलकार सोशल मीडिया पर धूम मचाने लगे। थाने के अंदर और थाने के बाहर टिकटॉक वीडियोस शूट होने लगी। जदीद असलहे की सरकारी गाड़ी में नुमाइश, शेर जवानों के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर चर्चे। आईजी पंजाब के अहकामात को टिकटॉक के जुनून ने हवा में उड़ा दिया। तमाम वीडियोस हालिया दिनों में बनाई गई। मिली यकजहती काउंसिल पंजाब वस्ती के सदर मोहम्मद जावेद कसूरी कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत निसाब तालीम में रद्द बदल करके मुल्की असास और अखलाकी इक़दार के साथ साथ इस्लामी तशख़्ख़ुस को पामाल करना चाहती है। मिली यकजहती काउंसिल हुक्मरानों के किसी गैर मुल्की एजेंडे को कामयाब नहीं होने देगी। मिली यकजहती काउंसिल पंजाब वस्ती के सदर मोहम्मद जावेद कसूर का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान हर महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को सेकुलर बनाने के एजेंडे पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस्लामाबाद में हुकूमती सरपरस्ती में मंदिर की तामीर को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान अपने वसाइल और फंड्स के साथ विफाकी दारुल हुकूमत में मंदिर की तामीर करके दुनिया को ये तासुर देना चाहती है कि पाकिस्तान एक सेकुलर रियासत है। 22 करोड़ गयूर अवाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के खिलाफ इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। मिली यकजहती काउंसिल इस हवाले से इस्लामी नजरियाती काउंसिल से राबिता करेगी और सरकारी सतह पर मंदिर की तामीर के खिलाफ मज़ाहमत करेगी। और अब टुडेज इंटरनेशनल। ईद उल अजहा के दौरान मस्जिद अल हराम को बंद रखने का फैसला कर लिया गया। सऊदी अरब में 2 हफ्ते की तातीलात का भी ऐलान हो गया है। सऊदी हुकूमत ने ईद उल अजहा के दौरान मस्जिद अल हराम को बंद करने का फैसला किया है और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ये फैसला सामने आया है। सऊदी हुकाम के मुताबिक रवां साल हज की तैयारियों में आज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सऊदी हुकाम ने हज के सिलसिले में की गई मनसूबाबंदी का पहला मरहला मुकम्मल होने का ऐलान करते हुए आज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में सरकारी मुलाजमीन के लिए छुट्टियां 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगी। निजी शोबे को 29 जुलाई से 2 अगस्त तक 4 रोजा छुट्टियां दी गई हैं। चीन और अमेरिका फिर से आमने सामने हैं। दो तरफा सिफारती महाज पर शदीद कशीदगी का आगाज हो गया। अमेरिका ने चीन को ह्यूस्टन में मौजूद चीनी सिफारत खाना 3 रोज के अंदर अंदर बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अमरीकी हुक्म पर चीनी क़यादत को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और इस पर चीन ने वुहान में अमरीकी सिफारत खाने को बंद करने पर संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है। सुपर पावर की दौड़ की जंग में अमरीका और चीन में सिफारती महाज पर जंग का आगाज हो गया। अमरीका ने अमलाक और मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन को 3 रोज के अंदर ह्यूस्टन में सिफारत खाना बंद करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने सिफारत खाना बंद करने के अहकामात की तस्दीक कर दी है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अवाम को धमकियां किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। चीन ने अमरीकी अहकामात को शरंगेजी करार दे दिया। चीन ने अमरीकी हुक्म के जवाब में वुहान शहर में मौजूद अमरीकी काउंसलेट को बंद करने पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। चीनी वजारत खारजा की जानिब से अमरीकी फैसले पर शदीद गुस्से का इजहार किया गया है। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीनी सिफारत खाना बंद करना चीन के खिलाफ शरंगेजी है। अमरीका से मुतालबा करते हैं फौरी फैसला वापस ले। ये रिवायत पड़ी तो चीन ठोस रद्द अमल देगा। कोलंबिया में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में 17 फौजी एहलकार सवार थे। हादसे में 9 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो गई है। बाकी एहलकारों की तलाश अभी जारी है। कोलंबियन फौज का हेलीकॉप्टर गोरिल्लास के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में कोलंबियन फौज के 17 एहलकार सवार थे। हुकाम ने हादसे में 9 अफराद के हलाक होने की तस्दीक कर दी है, जबकि बाकी 8 एहलकारों की तलाश का सिलसिला भी जारी है। कोलंबियन फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि खदशा है गोरिल्लास की जानिब से फायर रॉकेट से हेलीकॉप्टर तबाह हुआ। हादसे के बाद लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
और अब आपको बताएं, सऊदी फरमारवा शाह सलमान की तबीयत में बेहतरी आने लगी है। शाह सलमान ने अस्पताल से वीडियो लिंक के जरिए काबीना इजलास की सदारत की। फरमारवा ने काबीना इजलास के दौरान मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल भी किया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान तबीयत नासाजी के बायस सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से अस्पताल में ज़ेरे इलाज सऊदी फरमारवा की तबीयत में बेहतरी आने लगी है। शाह सलमान ने वीडियो लिंक के जरिए सऊदी काबीना इजलास की सदारत भी की। काबीना के इजलास में कोरोना समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। शाही काबीना अरकान ने फरमारवा की जल्द ही सेहतयाबी के लिए दुआ की है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर की सालाना तकरीबात की रौनकें भी छीन ली हैं। कोरोना के खतरात के पेश नज़र दिसंबर में होने वाली सालाना नोबेल इनाम की तकरीब को मनसूख करने का फैसला कर लिया गया। नोबेल फाउंडेशन ने कहा है कि यह साल कुर्बानियों और नए माहौल में ढलने का साल है। वायरस के पेश नज़र तकरीब का इनेकाद मुमकिन नहीं है। नोबेल फाउंडेशन ने कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र सालाना नोबेल इनाम तकरीब मनसूख कर दी है। नोबेल फाउंडेशन के डायरेक्टर ने कहा, कोरोना वायरस के मरीज पूरी दुनिया में हैं। वायरस के फैलाव के खतरे की वजह से तकरीब को मनसूख करने का फैसला किया गया है। कोरोना की वजह से नोबेल का हफ्ता भी नहीं होगा। ये साल कुर्बानियों और नए माहौल में ढलने का है। सबको मिलकर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, नोबेल इनाम पाने वालों के नाम, उनकी कारकर्दगी का ऐलान मुनफरिद तरीके से किया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए कौमी टीम फिर 2 सेशंस में प्रैक्टिस करेगी। डर्बीशायर में मुकीम कौमी क्रिकेट टीम दोबारा ट्रेनिंग शुरू करेगी। रोजाना 2 सेशंस में शेड्यूल प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिजिकल फिटनेस पर तवज्जो देंगे। मिसबाह हक समेत कोचिंग स्टाफ की जेर निगरानी प्रैक्टिस मैच की खामियां अब दूर की जाएंगी। इंजरी का शिकार आबिद अली भी ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नजर कहते हैं, मौजूदा हालात में 90 की दिहाई के आगाज से क्रिकेटर्स को रहना पड़ता तो बहुत लड़ाइयां होती और रोजाना एक दूसरे के गिरेबान पकड़े होते। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नजर का कहना है कि बायोसिक्योर माहौल के कौमी क्रिकेटर्स पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। खिलाड़ी बोरियत का शिकार हो सकते हैं। मेरे इल्म में यह बात आई है कि खिलाड़ी बोरियत का शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे हालात में खेलना मुश्किल है। मिसबाहुल हक की वजह से टीम कंट्रोल में है। फैमिली साथ न होने की वजह से खिलाड़ियों को इकट्ठा होने और दोस्तियां बनाने का मौका मिला है। मुदस्सिर नजर का कहना है कि मोहम्मद आमिर बिलाशुबा तजुर्बाकार और सीनियर बॉलर है और उसे इंग्लिश कंडीशंस का तजुर्बा भी है। वो इंग्लैंड अच्छा खेल सकता है, लेकिन मेरे जहन में जब ये बात आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये वही क्रिकेटर है जिसने कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान से खेलने के लिए हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस का कहना है, कोई भी खिलाड़ी टीम के लिए नागुज़ीर नहीं। मोहम्मद आमिर को देखना होगा वो कहां खड़े हैं ताकि उनके मुस्तकबिल के हवाले से प्लान किया जा सके। वक़ार यूनुस कहते हैं, मोहम्मद आमिर ने अचानक रेड बॉल क्रिकेट छोड़ने का फैसला किया तो हमें अच्छा इसलिए नहीं लगा कि टीम को उनकी ज़रूरत थी। हमने नाराज़गी का इजहार भी किया, लेकिन किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। मोहम्मद आमिर वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, तजुर्बाकार हैं, इसलिए हमारे पास मौका भी था, इसलिए उन्हें बुलाया। उन्हें बुलाने का मकसद ये नहीं कि उन्हें बुलाया तो खिलाएंगे। कोई नागुज़ीर नहीं है। जो अपनी फॉर्म और रिदम की बुनियाद पर टीम की ज़रूरत होगा वही खेलेगा। वक़ार यूनुस ने कहा कि इंग्लैंड में सब फास्ट बॉलर उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं, जो मेरे लिए इत्मीनान की बात है। यही नौजवान फास्ट बॉलर मुझे जवान रखते हैं। अच्छा है कि बैक वक्त इतने बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और सबका दस्तयाब होना प्रॉब्लम है, लेकिन ये गुड प्रॉब्लम है। शोबिज़ में सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिकी गवर्नर की बेटी को अगवाकारों से बचाने का मिशन। हॉलीवुड की नई फिल्म रॉक का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। मैगन फॉक्स की खूबसूरत अदाकारी से सजी फिल्म 28 अगस्त को रिलीज होगी। He's torn to pieces. A lion got him. Some lions go rogue. She likes to kill. How do you know it's a she? Females are the true killers.
Do you want to take a stand here? Light 'em up, Molotov music, let's all lose it. Burn 'em up, set a fire to it for my amusement. We can finish this. How about this honorable fight movement? I gotta do what I gotta do. That's for my face, back in my face. I gotta do what I gotta do. I pray to God, he never came. I'ma do me, I'ma do me. That's in my blood, I never change. This is the toast of the underdog. Now we doing it our way. कोरोना ने शोबिस को भी बुरी तरह से मुतासिर किया है। फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता फनकार और टेक्नीशियंस ईद पर अपने बच्चों को झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं दे पाएंगे। ईद दीगर शोबों की तरह शोबिस इंडस्ट्री के लिए भी खुशियों की सौगात नहीं है, फाकों के लम्हात लाई है। लाहौर से देखिए शजरुद्दीन की रिपोर्ट। कोरोना ने ईद की खुशियां छीन लीं। उर्दू और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री तो पहले ही ज़वाल पजीर थी। इक्का दुक्का फिल्में ईद पर सिनेमा घरों की जीनत बनती तो फनकारों और टेक्नीशियंस के घरों में रोजी जाती, जिससे वो अपने बच्चों की खुशियां खरीद पाते। शाहनूर बारी एवेन्यू और शाब स्टूडियोज वीरान पड़े हैं। माजी में जहां वो गहमा गहमी होती तो हर कोई अपने प्यारों के लिए ढेरों खुशियां खरीद कर घर पहुंचता। 35 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए। बहुत काम किया भी था, मगर अब काम नहीं है और ना हमें कोई पूछने वाला यहाँ पर, ना आज तक किसी वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आला ने ऐसी ज़हमत की है कि इनका भी हाल देख लें क्या हो रहा है। ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ 'ਚ। 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ रोजगार दे दिए, आओ ਤੁਹਾਨੂੰ राशन पानी दे, कुछ नहीं मिला। नई फिल्मों पर की गई करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट डब्बों में बंद होकर रह गई। जाने कब ये नगरी फिर से आबाद होगी। ईद पर रिलीज के लिए इंतजार के डब्बों में बंद फिल्में दी लेजेंड ऑफ मौला जट, तम मस्तम, टिच बटन, महजबी, मनी बैग गारंटी प्रोड्यूसर्स के लिए कड़ा इम्तिहान बन चुकी है। मुतासरीन की दहाई, हुकूमत को कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। इसके साथ ये बुलेटिन खत्म हुआ। देखते रहिए टीवी टुडे। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी। मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रिट को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।